संसार क्रांति न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची आज गांव धर्मगढ़ बोली में, जहां एक पूर्व सूबेदार थे जो हमारे सरदार जहांगीर सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिताया। और उसके बाद जैसा कि अभी बताया गया है, यहाँ एक इनकी शोक सभा थी आज, और शोक सभा अरदास, और उसके अंदर कई लोगों ने इनके जीवन के बारे में बताया कि किस तरह के वो समाज सेवी थे और किस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है। आइए हम आज उनके भोग अरदास के अवसर पर यहाँ पहुँचे संत से विधायक बख्शीश सिंह जी, उनसे बात करेंगे। बख्शीश सिंह जी, जैसा कि आपने भी कुछ बताया भी इनको श्रद्धांजलि देते हुए, तो जो जहांगीर सिंह जो रिटायर्ड सूबेदार थे, 21 फरवरी को वो गुरु जी के चरणों में उनके लीन हो गए। उनके जीवन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उनके जीवन को लेके सफेदो हल्का वासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਔਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुँचने ते हार्दिक स्वागत ते अभिनंदन करता हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विधायक जी, एक बात और पूछना चाहिए, जैसा कि हमने जब से ये प्रभु चरणों में लीन हुए हैं, तो उसके बाद गाँव वासियों का यही कहना था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, एकदम स्वस्थ से, और अपने लास्ट टाइम तक भी वो घर के कार्य खुद संभालते थे। तो एक 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, तब से लेके इनके मन में एक टीस और एक ठेस इनके मन को लगी थी, जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, और अक्सर ये जिक्र करते थे। उससे भी बहुत दुखी थे अपने जो इनका जीवन पूर्ण होने से पहले, एक हफ्ता पहले तक बहुत उससे दुखी थे, उस पुलवामा अटैक से, और कहीं ना कहीं वो भी सदमा इनके मन में था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो पुलवामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 42 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਦਮਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸਦਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਫੇਦੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि दो तीन दिन पहले हमारे एक पाकिस्तान में जो वायुसेना के अभिनंदन थे,
जो पायलट थे वो पाकिस्तान के कब्ज़े में थे और आज उनको भारत सरकार के दबाव के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उन्होंने इतना दबाव बना दिया कूटनीति की वजह से कि आज पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। और बड़े पूरी देश में आज इस बात की खुशी है, खुशी की लहर है कि अभिनंदन जो हमारे पायलट थे आज वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जड़े हमारे अभिनंदन जी जो हमारे पायलट थे वो अचानक उधर चले गए। अचानक जाने से उनकी गिरफ्तारी में आ गए, लेकिन हमारे देश का इतना दबाव पड़ा पाकिस्तान की संसद के अंदर इमरान खान को मजबूर होना पड़ा और ये बात उसको बयान देने पड़े कि मैं कल इसको रिहा करूंगा। और आज अभिनंदन जी जो है रिहा हो चुके हैं, क्योंकि बाहरली देश भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस हो, उन्होंने भी इतना बड़ा दबाव बना दिया कि अगर आतंकवाद को अगर पाकिस्तान वाले शायद देंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। आज आतंकवाद ने हमारे देश को कमज़ोर करने का काम किया है। आज पाकिस्तान वाले आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन हमारे देश ने जो अटैक किया उनके ऊपर, और किसी जनता के ऊपर नहीं किया, किसी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर नहीं किया, एक आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर उन्होंने करके 350 लोगों को उन्होंने शहीद किया वहाँ पर। जो आतंकी थे उनको मारने का काम किया और वो आतंक ठिकानों को ख़त्म करने का काम किया। अगर ऐसे आगे फिर पाकिस्तान वाले अगर ऐसे आतंकियों को ठिकाना बनाएंगे तो हम उनसे कोई भी इस पर विचार करके उनका खात्मा करेंगे। बाकी देश भी हमारे मुल्क जो हैं हमारे साथ हैं। सभी मुल्कों ने इस बात की निंदा की है कि पाकिस्तान वाले अगर आतंकवाद का बढ़ावा देंगे तो हम उसका आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। इसमें बहुत बड़ा बड़प्पन है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कल भी अपने भाषण में सारे देश को संबोधित किया और उन्होंने अपने बूथ को मजबूत करने की बात कही और अपने देश को उन्नति में ले जाने के लिए, विकास के काम के आगे बढ़ने के लिए हमारा देश आज बहुत आगे जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्राना भी करता हूँ और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी, कि जिन्होंने बड़े सूझबूझ से ये जो पिछले वायुसेना का जो काम किया है। और मैं वायुसेना के नौजवानों का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने बड़े सूझबूझ से 12 जहाज़ों के माध्यम से 21 मिनट के अंदर ही हमला करके वापस आना अपने देश के अंदर बहुत बड़ी बहादुरी उन्होंने की है। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये आतंकी हमला किया उसके बाद जो भारत सरकार का जवाब था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हौसला दिखाया, जो आज से 30 साल पहले 5 प्रधानमंत्री हमारे देश के आए थे वो नहीं दिखा पाए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साहस दिखाया है। तो आपको क्या लगता है कि आगे भी अगर कोई हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देखता है तो हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के अटैक करते रहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कल भी ये बात बोली है कि ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा। अगर हमारे देश के ऊपर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, उसमें कोई भी किसी का लिहाज नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी किसी अटैक करने के बाद जो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस दूसरे सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक से देश का मनोबल बढ़ा है। आज देश की 130 करोड़ जनता का मनोबल बढ़ा है और 130 करोड़ जनता का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा के में अप्रैल के महीने में जो होने जा रहा है, इसमें बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा और जितनी सीटें हमारी पिछले चुनाव में आई थी उससे बढ़ के सीटें आने वाली हैं। आज कोई भी विपक्ष के सामने, हमारे सामने विपक्षी खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है। आज विपक्ष को पता चल चुका है कि देश के अंदर मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है और जो गठबंधन करने जा रहे हैं, जो गठबंधन करते हैं, गठबंधन से सरकारें नहीं चला करती। पीछे जितने भी गठबंधन हुए हैं वो मजबूत नहीं थे, वो मजबूर गठबंधन थे। आज मजबूर सरकार है, आज इतनी मजबूत सरकार है कि ये मजबूत सरकार जो है आइंदा के लिए भी इतनी मजबूत बने कि इनको किसी के दरवाजे पे अपना नमन करने के लिए, माथा टेकने के लिए ना जाना पड़े और अपने बलबूते पे ही अपने देश को आगे लेके जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी घोषणाएं की हैं। अगर इसमें दुख की घड़ी में मैं आया हूं, यहाँ मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। आयुष्मान भारत की स्कीम चला के उन गरीब लोगों के परिवारों को 15 लाख करोड़ लोगों को, देशवासियों को उन्होंने एक योगदान दिया है। 6 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस सिलेंडर देने का काम किया है। उन्होंने सौभाग्य योजना चला के लोगों के अंदर बहुत उत्साह दिया है। इसलिए देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आज विकास की झड़ियाँ लगी हुई हैं और आज हमारा देश जो है दूसरे देशों से कम नहीं है। इसलिए आज अमेरिका वाले, रशिया वाले, इंग्लैंड वाले जो हैं हमारे मुल्क से डरते हैं कि ये मुल्क जो है आज बड़ा मजबूत है और मजबूती से पेश आएगा। इन पाकिस्तान वालों को पता लग गया है कि जो हम भभकी धड़की देते थे, गिद्दड़ की धमकी देते थे, अब हमारा जो हिंदुस्तान है हमारे से डरने वाला नहीं है। और जो मैं तो आपके माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर 35A है उसको समाप्त किया जाए जल्दी से जल्दी और 370 दफ़ा जो है उसको तोड़ा जाए,
जिससे कि दूसरे देश के लोगों के, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ जाके ज़मीन ले सकें और वहाँ जाके रह सकें और उन आतंकवादियों को यहाँ पर वहाँ से समाप्त कर दें। ये एक देश में एक संविधान होना चाहिए। हमारे देश में 2 संविधान हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है और हमारे सारे बाकी देश का संविधान अलग है। इसलिए हम एक संविधान चाहते हैं। हम एक मुल्क दे बंदे हाँ, असी एक मुल्क में रहने हाँ। इस करके मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया मैं यही अज अपने सूबेदार जगीर सिंह की अंतम शांति वास्ते कि लोगों के अगे अपील करांगा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर इस काम दे विच अगे लगना चाहिए है तो उस आतंकवाद को खत्म करने वास्ते 130 करोड़ जनता को साथ देना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये थे हमारे साथ असंख्य जो विधायक आज एक भोग अरदास में एक रस्म में आए थे। जो सरदार मेजर सूबे सिंह जहांगीर सिंह जी थे उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और इनके अपने श्रद्धांजलि इन्होंने दी और उसके बाद कई बातें देश हित के बारे में, समाज हित के बातें बताई। हम सरदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसार क्रांति से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा धर्मगढ़ गांव बोली से जो मेजर जहांगीर सिंह थे जो जिनका अभी 21 तारीख को निधन हुआ था, प्रभु चरणों में लीन हुए हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए का अरदास भोग क्रिया का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें असंख्य विधायक बख्शी सिंह हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात करी। संसार क्रांति न्यूज़ चैनल से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल दहिया के साथ। इत्थे स्वाह हो गया, मिट्टी की ढेरी बन गया, पलामी जी सहे पर जो उस शरीर दे नाल काम कीते ਉਹਦੇ ਅਲਾਮੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। जे चंगे काम नहीं ना करने दोनों ही रोंदे जाणगे। हुण काम ते शरीर नाल करदे आ, मन दे मगर लगदे, पर शरीर ते इत्थे रह जांदा। कीते हुए कामां दे अलावे जिंद नूं सहणे पैंदे ने। इह भी बेनती करदे ने जिहड़ी मुक्ति है ना, बस आह गल समझ के आपां समाप्ति करदे आ। मुक्ति ते विचार कर लईए, समा भी होण वाला है, समाप्ति करांगे। सारिआं ने नुक्ते नूं ध्यान ला के सुणना। जिहड़ी मुक्ति है वो जिउंदियां दी हुंदी है। जिद्दां भी आपां काम करदे हां ना, कामां दे आधार जिउंदियां गुरु जी मुक्त करदे ने। मरण तो बाद कोई भी मुक्ति नहीं हुंदी। कौन कहंदा? मैं नहीं कहंदी, मेरी की औकात है मैं कह देवां? गुरु जी कहंदे। सुनिए गुरु जी तो, बैनी कह सुनो रे भगतो, मरन मुक्त किन पाई। सत संगियो सुनो, समझो इस गल नूं।